الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليہود والذین اشرکوا وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ صدق اللہ العظیم۔ تم یہ بات ضرور محسوس کر لو گے کہ مسلمانوں سے سب سے سخت دشمنی رکھنے والے ایک تو یہودی ہیں اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو کھل کر شرک کرتے ہیں، اور تم یہ بات بھی ضرور محسوس کر لو گے کہ غیر مسلموں میں مسلمانوں سے دوستی میں قریب تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو نصرانی کہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان نصرانیوں میں بہت سے علم دوست عالم اور بہت سے تارک الدنیا درویش ہیں۔ نیز یہ وجہ بھی ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ سورہ مائدہ کی آیت 82 ہے۔ اللہ تعالی شانہ نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں پائے جانے والے ادیان اور کفار کے مختلف مذاہب رکھنے والے کفار و مشرکین میں دو لوگوں کو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن قرار دیا۔ ایک تو مشرکین ہیں، ان کی عقل کے اندر یہ بات ہی نہیں آتی کہ ایک اللہ ساری کائنات کو پیدا کر کے اکیلا ہی نظام عالم کو بغیر کسی کی مدد کے چلا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی چھوٹے موٹے ساتھ کوئی ہیلپ کرنے والے اور ادھر ادھر بھی ہونے چاہیے، اور اس میں ان کو اپنی سہولت بھی رہتی ہے کہ اللہ کا تو ہر حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، اور بت وغیرہ دوسری چیزیں جن کو قابل پرستش بنا رکھا، وہ گونگے بہرے اندھے، نہ چل سکیں نہ کچھ کہہ سکیں، جو مرضی ان کے سر کوئی بات تھوپ دی، چلو ٹھیک ہے، کہ یہ اس طرح سے چڑھاوے پر راضی ہو جاتے ہیں، ان کے دو پھیرے لگاؤ تب یہ خوش ہو جاتے ہیں، کوئی جانور ذبح کر دو، یہاں تک کہ بعض ظالم انسان تک کی بھینٹ چڑھاتے آئے ہیں بتوں کے پاؤں اور قدموں پر کہ جی یہ ہمارا بہت بڑا بت ہے، اس سے ہم بڑے کام لیتے ہیں، وہ بیچارہ گونگا ہے، بولن جو گا نہیں ٹرن جو، اور یہ ان کے کام کرتا ہے، اور شر اور خیر کو اس کی طرف منسوب کرتے ہوئے کہ اے راضی ہو گیا تو پھر ستے ہی خیرانے، پھر دودھ کی نہریں چلیں گی اور جتنی ہم دولت مانگیں گے یہ بارش کر دے گا، انہوں بیچارے نوں پتہ ہی کون، اور اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو یہ ہمارا بیڑا غرق کرے گا۔ یہ انہوں نے عقائد گڑھے ہوئے تھے۔ اور پھر کئی علاقے ایسے تھے کہ سالانہ وہاں ایک انسان ذبح کیا جاتا، کس کے لیے؟ اس بت کی رضا کے۔ قرآن پاک میں ہے کہ یہ اصل شیطان کی پوجا ہے، ان پتھروں کی، درختوں کی،
सितारों की उनकी क्या पूजा करनी। शैतान ने दिमाग खराब किया और शर इनके अंदर डाला और वो इनके अंदर जागुज़ीन हो गया। अब मक्के में रसूल पाक सल्लम ने 13 साल ईमान की शब रोज मेहनत फरमाई, चंद मुसलमान हुए, बाकी मुशरक रहे। और उनमें बड़े बड़े सरदार दुनिया के एतबार से कहते थे कि हमारे जितना सियाना माँ ने पैदा ही नहीं किया। अबुल हिकम अपने आप को कहलाते थे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि नहीं, ये सियाने नहीं है, ये तो अबू जहल हैं, जहालत के पीछे और जहालत के अंदर डूबे हुए गरक हैं और चाहते हैं कि सारे लोग ही जाहिल रहें, ना इनको रब की मार्फत हो, ना इनको दीन दुनिया की कोई खबर हो, ना इनके पास इल्म और अकल हो। ये मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन बुनियादी मुशरिकीन उस वक्त भी थे, आज भी हैं। हमारा हमसाया मुल्क हिंदुओं की यहाँ हुकूमत है, वो बुतों की पूजा करते हैं। जितनी उनकी आवाम है, हिंदू अफराद हैं, उतने ही हर एक का कम अज कम एक बुत तो उन्होंने घर में रखा होता है। और जो उनकी इबादत गाहें हैं वो बुतों से भरी हुई होती हैं। कोई लक्ष्मी देवी है, कोई फलां है, और सांप तक मूजियात की भी वो पूजा करते, उनकी भी मूर्तियां बनाई। गाय को अपनी माँ बना रखा और उसका पेशाब तक पीते। अब तो नेट का जमाना, वो दिखाते हैं, कईयों का दिल नहीं करता। वो एक इंकर था, वो हर हिंदू के पास जाकर ना, उसने कोई मशरूब बनाया होता, वो गाय का पेशाब नहीं था, कलर ऐसा बनाया हो। वो हिंदू को कहता यार तुम्हारा ये मजहब है तो तुम पी सकते हो। वो अक्सर यही कहते हाँ हाँ हम पीते तो हैं, लेकिन यूं नहीं जब हमारा दिल करे या कोई खास वक्त होता है टाल बट। लेकिन कई जाहिल ऐसे उजड़ डंगर किस्म के वो पकड़ कर वो कह रहा है कि ये गाय का पेशाब है, वो पी रहा। पेशाब होता तो नहीं था, उस बेचारे ने तो इम्तिहान ने ऐसा किया। तो उनको एक चींटी मारने में भी बड़ा तरद्दुद होता है। वो कहते हैं कि गोश्त खाना हराम है क्योंकि जानवर को ज़िबा करना पड़ता है, एक की जान लेकर हम अपनी जान पालें। और उधर मुसलमानों के पीछे पड़कर सैकड़ों हजारों को नाहक कत्ल कर देते हैं, पूरा पूरा इलाका बस्ती आग लगाकर जला देते हैं। वहां वो टासे कुरान पाक में यहाँ इस आयत में ये बात इरशाद फरमाई है कि मुसलमानों के शुरू से सख्त तरीन दुश्मनों में एक तो मुशरक हो गए, बुतों के पुजारी। मुसलमान एक रब की इबादत करता है, उन्होंने सैकड़ों हजारों की करनी होती है, तो बहुत बुनियादी एक टकराव बनता है। और दूसरे वो मलऊन जिन पर रब ने अंबिया अलैहिस्सलाम, दाऊद और ईसा अलैहिस्सलाम की जबान पर उन मलऊनों पर लानत भेजी, ज़बूर शरीफ में और इंजील शरीफ में, और उनको धमकी दी अल्लाह पाक ने कि अगर तुम बाज ना आए तो कुरान में भी तुम्हारे ऊपर लानत भेजी जाएगी जो अबदन रहेगी ता क़यामत, फिर उससे निकलोगे नहीं, वरना बाज आ जाओ। बाज आने का क्या मतलब कि अल्लाह के इन आखिरी नबी और रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को मानो, अल्लाह पर जो ईमान लाने का हक है वो अदा करो। और वो तब होगा कि कुरान पाक को पढ़ो, इस इल्म को हासिल करके वही इलाही के मुताबिक अपना अकीदा और अमल बनाओ। उनमें बुनियादी खराबी ये थी कि वो कहते तो थे कि क़यामत कायम होगी, जन्नत दोज़ख है, लेकिन साथ में गड़ंतू मसले बनाए हुए थे कि हम नबियों की औलाद हैं और ख़ास इब्राहिमी नस्ल और बनी इसराइल हैं, हमें गुनाह मुजर्रत नहीं देते, हम अल्लाह के इतने लाडले प्यारे और ऐसे हैं जो चाहें करें, सब हमें माफ़ है। अल्लाह पाक फरमाते ना मैंने तो एक रत्ती और तिनके का और एक एक जर्रे का हिसाब लेना है, तुम किस ख्याल में फिर रहे हो।
रब के लिए सारे इंसान बराबर हैं। हाँ, जो ईमान लाए, नेक अमल करे, वो रब का प्यारा है और अल्लाह का करम और उसकी रहमत अब्दी उसको हासिल होगी। और जो अल्लाह को मानता नहीं या गलत मानता है या अपने पास से बातें गढ़ कर मंसूब करता है तो उसका अकीदा खराब है, उसका अमल सही हो ही नहीं सकता। इनमें बड़ी बीमारी हसद की थी, तकब्बुर था इनमें। तकब्बुर तो शैतान की खसलत है। जिस इंसान में तकब्बुर हो वो दुनिया में भी रुसवा होकर रहता है, ये रब का कानून है। जो जितना अकड़ता है उतना जलील भी होता है। आगे तो मसला है ही यहाँ दुनिया के अंदर भी। दूसरी इनमें बीमारी थी कि इनको माल इकट्ठा करना और दुनिया परस्ती इनके अंदर रची बसी थी। सदियों से, हजारों सालों से ये माल के पीछे जान, माल, इज्जत, औकात, हर शय की कुर्बानी कर देते पे 4 पैसे हथी आ जाए बस। तो जिसका रब रुपया और पैसा और दुनिया की मोहब्बत रब से बढ़कर हो, उसको ईमान कैसे कबूल हो सकता। तो अल्लाह पाक ने यहाँ इस आयत में फरमाया कि यहूदी और मुशरिक ये मुसलमानों के सबसे ज्यादा मुखालिफ होंगे, शदीद तरीन दुश्मन होंगे। बाकी रहे काफिर, तो जाहिर है एक मुसलमान है एक काफिर है, उनमें दिन और रात का फर्क है। लेकिन कुफार की आगे किस्में हैं, जैसे ईसाई हैं, उस जमाने में भी थे। तो मुसलमानों ने जब हिजरत की तो मक्के से हिजरत करके हबशा मुल्क था, वहाँ ईसाई हुक्मरान था नजाशी। वो बड़ा नेक दिल था, अपनी किताब पढ़ता था, इंजील शरीफ अमल भी करता था, उसे इल्म भी था और नरम मिजाज भी था। उसने मुसलमानों को जो हिजरत करके वहां गए अपने मुल्क में ठहरा लिया। इनके पेट में दर्द हुई, मुशरिकीन ने मक्का ने वफद भेजा और तोहफे ताहफ़ भेजे कि हमारे गुलाम भगौड़े हैं, ये हमारे हवाले कर दो। उसने बुलाया मुसलमानों को, क्या कर दिया तुम्हारा, इनका रौला क्या है, और साथ शिकायत लगाई कि ये ईसा अलैहिस्सलाम की बड़ी तौहीन करते, उनको नहीं मानते। वो नजाशी ने पूछा तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु के भाई थे, उनका नाम था जाफर। बड़े कादिरुल कलाम थे और गुफ्तगू करते थे तो अगला बंदा हैरत में आता था। उन्होंने इस्लाम की खूबियां और जो पहले उनके अंदर खराबियां थी वो थोड़ी थोड़ी जिक्र करके फिर सूरत मरियम की आयतें पढ़ी, जहां अल्लाह पाक ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया है कि वो अल्लाह के बंदे थे, नबी और रसूल थे, वो इब्नुल्लाह नहीं थे, अल्लाह का बेटा या खुदाई हिस्सेदार नहीं थे। जब ये उन्होंने वजाहत सुनी नजाशी ने तो उसकी आंखों से आंसू आ गए और एक तिनका उसने पकड़ा और कहने लगा कि इल्म की रूह से। और असल जो हमारी किताब है, ये जो जाफर ने बात की है, हमारे नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक तिनका इससे ना ज्यादा थे ना कम थे। जाहिर है कुरान की आयतें थी और अल्लाह ने तारुफ करवाया अपने नबी का, उससे ज्यादा बेहतर बात क्या हो सकती। तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कुफार में से मुसलमानों के करीब बात बार मिजाज और चंद एक बातों के कि उनमें रहबानियत है। उनके कई लोग बिल्कुल दुनिया तरक करके पहाड़ों में चले जाते हैं कि हमने रब को ही राजी करना और कोई काम नहीं करना। उनमें कुछ किस्सीसीन हैं, इल्म दोस्त लोग हैं। आज भी यूरोप में और अमेरिका और जहां ईसाइयों की कसरत है, खा वो दुनिया के उलूम के पीछे पड़े हुए हैं, फिर भी वो अपनी किताब को भी लेते हैं, उसके कुछ तराजम हैं और उनमें मुस्तशरिकीन हमारे उलूम को भी सीखने वाले हैं। एक ईसाई ने बड़ी मुगलक मुश्किल किताब जो लुगात की है वो पूरी लिखी,
وہ پڑھتا تھا تو لکھی ہے. فرمایا کہ ان کے اندر کچھ علم ہے، کچھ اچھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے یہ اتنے دشمن نہیں جتنے یہودی اور مشرک مسلمانوں کے. آج بھی اس وقت بھی قرآن کی یہ آیت پڑھو اور پوری دنیا پہ نظر ڈالو، سب سے زیادہ موذی ہمارا مسلمانوں کا دشمن یہودی ہے. وہ تو کہتا کہ مسلمانوں کو کیا، میں تو سارے انسانوں کو قتل کر دوں. کیسے؟ وہ کہتا ہے کہ اتنے ہمارے نوکر ہمیں نہیں چاہیے، 8 ارب انسان ہیں اور ہماری تعداد ہے 1 کروڑ. ہمیں نوکر 1 ارب انسان بڑے ہیں، باقی ہم سب کو ختم کر دے. کبھی کرونا، کبھی کچھ. یہ ان کی چھیڑ خانیاں ہیں، دجالی سسٹم بنایا ہوا انہوں نے، اور پوری دنیا کی معیشت کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے سود کے ذریعے. اور سود کی ان کے ہاں کئی اقسام ہیں. ہم تو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بینکوں میں تھوڑا بہت لین دین، نہ، ان کی بڑے لمبے چوڑے منصوبے. تو سب سے موذی وہ. اور پھر جو مشرک ہوگا، بتوں کا پجاری اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا، وہ بھی مسلمان کا بنیادی اور پکا دشمن ہوگا. اللہ نے تینوں چیزیں یہاں اس آیت میں ذکر فرمائی تاکہ ہمیں عبرت ہو، علم ملے اور عقل، اور دنیا اور آخرت کے امور میں آسانی ہو. اللہ پاک صحیح سمجھ عمل کی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یا اللہ پاک ہماری سب مشکلات کو حل فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشانیوں کو دور فرما، دین دنیا کی بلائیاں، آسانیاں، راحتیں، ترقیات یا اللہ برکتیں عطا فرما. ہر طرح کا سکھ چین نصیب فرما. تمام تکلیفوں، تنگیوں، آلام، مصیبتوں، رنج و غم کو دور فرما. یا اللہ نور کامل قرآن پاک کا، سنت کا، یا اللہ پاک اپنی توحید الوہیت کا، یا اللہ ایمان کا نور کامل عطا فرما. اسی پہ زندہ رکھ، اسی پہ ہماری موت آئے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ واہل بیتہ اجمعین.